Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss on allylic and benzylic halogenation, which is the continuous of free radical substitution reactions in lecture 10. So we have right now lecture 10 and we will discuss allylic and benzylic halogenation. तो इस लेक्चर में हम लोग ना allylic और benzylic halogenation का 5-10 मिनट में से कॉन्सेप्ट बताएंगे. इसका रिएजेंट याद रखना होगा और ये खत्म हो जाएगा. उसके बाद 4-5 एबीसीडी टाइप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. उसके बाद मतलब वो क्वेश्चन से सारा रिवीजन होता है. बेसिकली वो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना आ गया तो जोशी 2 का सारा चीज तुम्हें समझ में आ रहा है. चलो स्टार्ट करते हैं. Firstly, we have allylic and benzylic halogenation. This is the FRSR in allylic and benzyl. Okay, this is the FRSR. What is allylic carbon and vinylic carbon? First of all, say what is allylic carbon. Suppose CS3, CS2, CH double bond CS2. Okay. Identify which is allylic carbon and which is vinylic carbon. You know allylic carbon and vinylic carbon? In the starting of organic chemistry, you have studied what is allylic and what is vinylic types of carbon. Okay, then you can easily identify. I am going to say, देखो एलाइलिक कार्बन होता है जैसे कि डबल बॉन्ड होनी चाहिए उसमें, ठीक है. और देखो इसका डिनोशन 1 2 3 4. अगर इसका कार्बन का नंबर डिनोट करते हैं तो जो थर्ड कार्बन होगा ना, ये थर्ड कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड से थर्ड कार्बन होगा, वो एलाइलिक कार्बन होगा. और विनाइलिक कार्बन कौन सा होगा? विनाइलिक कार्बन फर्स्ट या सेकेंड होगा. मतलब डबल बॉन्ड वाले आसपास जो डबल बॉन्ड का जो साइड वाला जो होता है कार्बन, वो विनाइलिक कार्बन होता है. हाँ, एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड के साइड वाला, तो वो कौन सा होता है? एलाइलिक कार्बन होता है. ठीक है, तो इसमें ये बात हमें ध्यान में रखनी है. चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशंस. ओके, रिसेंटली वी हैव स्टडी वर्ड हेलोजिनेशंस. These are the isomerism. I want to show you table what we have studied. Okay, this is what we have studied. These all are studies: halogenation, vapor phase nitration, sulfonation, isomerism, pyrolysis, cracking, aromatization, reaction with steam. All these are also we have learned FR in allyl and benzyl halide. This is allylic or benzylic halogenation done by these reagents, and you have to remember these reagents. Okay, then this type of process will be followed. What we are going to tell, I am going to tell, not you. And you know what? How to discuss this types of problem. This is very important in exams. You should have to follow this type to practice yourself. Then start allylic and benzylic halogenation. Just we have to remember reagents. I already said in earlier video, you must have remember reagents and their work. Then the reagent, first reagent in NVS, second reagent is halogen in the presence of HMU, your sunlight. This is the sunlight. And third reagent is that halogen plus heat. And fourth reagent is SOCl2 plus heat. Generally this is common and this is also common, but we have to remember all these four. N-bromosuccinamide. N-bromosuccinamide. This is N-bromosuccinamide. Okay. Succinamide. How to do
this type of problem if we have given this okay, how to do? एलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाओ। अब मैं अलाइलिक कार्बन क्यों बताया, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। जो अलाइलिक कार्बन होता है, विच इज अलाइलिक कार्बन इन दिस इज द अलाइलिक कार्बन। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ। हेलोजन क्या, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हो उसमें से वो लगा देना है। जैसे कि एन ब्रोमो सल्फानामाइड है, तो ब्रोमो में कौन सा है, बी आर हेलोजन है, तो ये बी आर लग गया। कहाँ लगा, देखो 1 2 3, दिस इज अलाइलिक, 3 इज अलाइलिक। द सेम वे यहाँ 3 पे अलाइलिक। Cl2 in the presence of H mu, Cl2 in the presence of H mu, then Cl यहाँ लगा दो, ठीक है। और एलाइलिक हाइड्रोजन होता है जिसका अल्फा हाइड्रोजन 3 होता है, देख यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 आएगा, ठीक है। ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन पे Br2 प्लस यूवी लाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Br एंड व्हाट, दिस इज द एल्कीन। एंड एल्कीन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैंने एक टेबल भी बताया था स्टार्टिंग में GOC1 के, वो टेबल वो वैसा टेबल था, कौन सा था पता है तुम, वो टेबल है कौन सा रिएक्शन अप्रोच कैसे, मतलब करेक्टरिस्टिक्स, उस रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलता है कि किसके द्वारा दिया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, वो एल्कीन के द्वारा ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें एल्कीन आ रहा है ना, तो ये एल्कीन आ रहा है तो इसमें रिएजेंट भी वही आ सकता है। बाय द वे कभी तो एग्जाम में आ सकता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ FRSR बट दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Br2CCl4, Br2 in the presence of CCl4, anti-additions occur. You know, anti-additions occurred. Br2 is a lone pair containing element, and you know the mechanism of Br2. एक बार Br2 एक बार एज ए इलेक्ट्रोफाइल आता है तो दूसरी तरफ से अटैक करता है। एक बार एक तरफ से दूसरी तरफ से अटैक करता है, ठीक है। तो उसमें रिंग चेन का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेबल बनता है। ओके, दिस इज द एंटी एडिशन, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Now, if toluene is occurred in the presence of Cl2 or H mu, then FRSR is occurred. अगर मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो यहाँ आके जुड़ेगा, डाइक्लोरिनेशन करेंगे तो Cl2 दो Cl2, जो ट्राई क्लोरिनेशन करने 3 क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन AlCl3 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे Cl2 और H mu है, यहाँ पे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, उसका सब्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ पे AlCl3 का यहाँ पे रिएजेंट का महत्व पता करो कि रिएजेंट करता क्या है और रिएक्टेंट में क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलिन है और तुम्हें टॉलिन के बारे में पता है कि अगर टॉलिन होगा और AlCl3 क्लोरीनेशन करते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द एक्सेप्शन 1। मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था और क्वेश्चन में अप्लाई करके भी बताया था। तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएजेंट पे डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। क्लोरीन के साथ H mu है तो FRSR होगा। क्लोरीन के बाद Cl2 और Al3, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al3 है तो ESR होगा, ठीक है। तो इतना हमारा था एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अब अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। सारा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे ये नीट 2020 में है, Cl2 प्लस H mu, मतलब 2 मोल लिए इसका, ठीक है। तो 2 क्लोरीन जोड़ देंगे, ये देखो 2 क्लोरीन में जोड़ दिया, ठीक है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H प्लस द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके, देन ये क्लोरीन को हटा दो और 2 OH जोड़ दो, और एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, तो पानी निकल जाएगा और CHO बन जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे दिया रहता है कि Cl2 प्लस H mu प्लस यहाँ ऐसे दे देगा, ठीक है, और H प्लस प्लस वाटर, और तुम्हें लगा कि 2 OH है बस वाटर है, ये जोड़ दो, ये पानी निकालना भूल जाओ, पर ऐसा नहीं करना।
दिस इज Br2, सॉरी दिस इज Br रेडिकल CH3, यहाँ से रेडिकल जनरेट होगा, क्या हो जाएगा AlCl3 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो Br के पास रेडिकल है, कहाँ जाके जुड़ेगा पैरा पे, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu अगर एक्सेस में ले लिए तो एक्सेस में सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। भाई ये Hmu है, ये एलाइलिक कार्बन है ना यहाँ पे, तो एलाइलिक कार्बन तो सारा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और Cl जाके जुड़ जाएगा। वाटर के साथ करेंगे, वाटर दिए तो वाटर में सभी पे OH लग गया है ना, सभी पे OH लगा दो, ये रहा सभी पे OH लग गया। अब इस पे क्या करो, पानी निकाल दो, CHOH CHO, okay, then acid is formed, this type of acid decrease. Now this reaction, what I have told that this is the revision of all type of reactions, just listen carefully. HBr in the presence of R2O2, मैं बोला था HBr in the presence of R2O2 हमेशा उल्टा होता है नॉर्मल केस से। तो बताओ कार्बोकटाइन कहाँ स्टेबल है बनने के बाद, यहाँ पे, लेकिन Br प्लस और Br माइनस हम लोग करते हैं, यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे Br प्लस और H माइनस यहाँ पे उल्टा करते हैं R2O2 में, तरीका बताया था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन स्टेबल बनता है तो प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर R2O2 आ जाए तो इसको ऐसे जोड़ दिए, ये बन गया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, Br हटेगा, रेडिकल बनेगा, जो आज पढ़ा मैं कल लास्ट लेक्चर में मैं बताया था। तो Br2 हटेगा और रेडिकल आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ ये बॉन्ड बन गया, अंडरस्टैंड। एरोमेटाइजेशन Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रिएजेंट आ जाए, इसको तोड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रिएजमेंट करेगा, रिएजमेंट करके ये रिएजेंट आएगा, ये रिएजेंट इस पे अटैक करेगा, ओके। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज क्यूमीन। क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करने के बाद, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कोहल बनता है। दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न, ओके। क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करे, ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल, फिनॉल, ओके, फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। Br2 in the presence of CS2, Br2 in the presence of CS2, what, ब्रोमिनेशन, we have to do bromination on this ring, ब्रोमिनेशन किए, अब ब्रोमिनेशन किए तो अब क्या हो गया, PS2 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, और यू नो इन ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट, एसिड बेस रिएक्शन इज बेटर देन अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ग्रिग्नार्ड। सो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, खुला हाइड्रोजन है, तो वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, PS2 CH2 MgR, PS2 CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ से लेके, तो इसके बाद टोल्यून बन जाएगा। टोल्यून का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून Cr2ACO, तो टोल्यून का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनता है, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, साइनोहाइड्रीन NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaCN। तो ये मैंने रिएक्शन बताया था कि जब CHO होगा ना ऐसे, ठीक है, तो जो ये रिएक्शन होगा ना, इसको बॉन्ड को तोड़ दो दोनों को, और जो Na और Cn माइनस और OH, Cn और H जोड़ दो, यहाँ पे Cn और O तो यहाँ बचा ही है, H जोड़ दो, ऐसे मैंने बताया था इसको रिएक्शन को करने के लिए। तो ये बन जाएगा अपने पास। अगर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बनता है, एसिड, याद रखो, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बनता है, एसिड, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, मैं सब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पिछले लेक्चर जरूर प्रीफर करें, ठीक है। V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, OH, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। और ये फिनॉल
फिनॉल है ना, ये फिनॉल को CO2 प्लस NaOH डाइल्यूट HCl, व्हाट इज दिस, यू नो व्हाट इज दिस, CH, तो यहाँ पे CHO सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यू नो व्हाट which is the which type of reaction is this? No. जिंक डस्ट रिडक्शन ऑफ फिनॉल, क्या करना है, जिंक डस्ट फिनॉल का रिडक्शन करना है बस, तो बस इसको उड़ा दो, लेकिन इसको नहीं उड़ेगा, जिंक डस्ट में ये नहीं होगा, सिर्फ जिंक होगा तो COH भी उड़ जाएगा, ठीक है, अगर हीट नहीं होगा तो, ओके। अब क्या करना है, इसको हटाओ, अब इसको हटाना है, CaO प्लस NaOH डिकार्बोक्सिलेशन, CO को उड़ा दो, ठीक है, CO2 को उड़ा दो, तो बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन में वही फिर से करना है, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन, और ये यहाँ के जुड़ गया, ठीक है, तो ये बन गया KMnO for KOH। KMnO for KOH क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में मैं बताया था कि जितना भी कार्बन होगा, अगर इससे कार्बन सारे को किस में कन्वर्ट करेगा, COH से, और वाटर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ CaONaOH, in the presence of CONaOH, what is this? This is decarboxylation, remove CO2, remove CO2, then this is Br, remove Br, and rearrangement occur, and this electrophile gets attached to the ring. After that, you know, cumene, aerial oxidation of cumene gives phenol, then we give phenol plus ketone. I have already discussed aerial oxidation of phenol in oxidation topic. Whole oxidation topic I have discussed. We should go through. If CH3NH2 plus dilute HCl, then I have already discussed the how to solve this type of. Just you have to remember that remove H2O from ketone and H2. Okay, then this is formed. This is so simple. You have to revise from previous topic, then you are able to solve this type of problem. Okay, this is not so hard. This is the, if you practice this, you can solve. Okay, which of the following can react with NBS or HMu? बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो NBS रिएक्शन देता है, ठीक है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बेंजाइलिक और एलाइलिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ है पर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ है पर यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो जाएगा, ओके, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। चलो NBS कराओ, इसमें NBS कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया, कहाँ होगा NBS, यहाँ नहीं होगा और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब ये सब क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है, चलो। तो अब हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कस होता है और FR-SR कंप्लीटेड। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे क्या करना है कि जो जितना भी रिमेनिंग होता है, ज्यादातर पार्ट 12th का, अब इसमें कंप्लीट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ओके। इसमें बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप, ओके, SN1, SN2, then we will discuss types of reactions and substitutions reactions। जैसे कि अगर SN2 का NSR इन अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड का जितना भी NSR का रिएक्शन है वो सारा डिस्कस होगा, ठीक है। फिनॉल का NSR डिस्कस होगा, कीटोन का NSR डिस्कस होगा, अल्कोहल का NSR डिस्कस होगा, एंड सारा टेस्ट इसमें आता है,
जितना भी रिएजेंट होता है सारा का टेस्ट इसमें डिस्कस होगा. वेरी गुड लेक्चर एंड वेरी लेंदी, एंड lecture will be also lengthy in next lessons. Okay, then lecture done. Okay, and don't forget to subscribe this channel. Okay, thank you.